and welcome. You're watching a very special town hall. We're coming to you live from Goa. Now, Goa may be one of the smallest states going to the elections, but it is indeed the most fascinating election this 2022. I have two very special guests with me, the Aam Aadmi Party convener and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal here with us, and Amit Palekar. Well, welcome to NDTV. This is your first election campaign. He is the Aam Aadmi Party's Chief Ministerial candidate here in Goa. So, Arvind Kejriwal, why Amit Palekar? Why not? He's one of the best suited candidates. Amit Palekar पढ़े लिखे हैं. अमित पालेकर ईमानदार हैं और अमित पालेकर गोवा के लोगों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं. अमित पालेकर के दिल में गोवा बसता है. ओके. और फ्रेश फेस है. What attracted you to एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है जो आज गोवा की हालात के लिए जिम्मेदार हैं. जो लोग एक फ्रेश चेहरा है. There are a lot of fresh things happening this election, and I'm going to come to that. But what attracted you to the Aam Aadmi Party? Did they pick you or did you pick them? I think I picked them up. I think it was a love marriage actually. Yeah, it was. Okay. It was a perfect love marriage, and that's why probably 14th February is the elections, because I think it's an expression of love that happens most of the time on 14th February. That's how voters of Goa are going to express their love for Aam Aadmi Party. All right. But I think what is let's keep aside the humor part of it, but if you've seen Goa for last 2 decades, Goa is at a threshold of where people are fed up of corruption. The corruption has reached at such a peak that you needed an option. Now, when you want to come into politics, the only option that you see is one of the most credible, most honest option is Aam Aadmi Party. And that's why you fall in love with a party like that. Because that's the leader who comes and behind closed doors tells you that if you want to do honest politics, if you want to be an honest politician, this is the party for you, or that's the door for you. Okay, fair enough. The counter question to that is, and Arvind, if you want to come in here, that this Aam Aadmi Party entering, TMC entering the Congress already here has led to a more fragmented opposition in Goa, which will be advantage BJP. That's been the biggest criticism of the fact that the opposition has not been able to unite ahead of the Goa election. How do you want to respond to that? Has the opposition been able to unite? वो एक गलत ऐसे लगता है कि बहुत सारी पार्टियां हैं. ये वाला चुनाव में गोवा के लोगों के सामने 2 ही ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन है कि आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए और एक ईमानदार सरकार चुनिए, अच्छी सरकार चुनिए जिसने दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे काम किए. और दूसरा ऑप्शन है कि बीजेपी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोट दीजिए. इनडायरेक्टली वोट देने का मतलब है कि अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो वो कांग्रेस वाला जीत के बीजेपी में जाएगा. आप एमजीपी को वोट दोगे तो वो जीत के बीजेपी में जाएगा. तो और किसी को भी वोट दोगे तो वो जीत के इनडायरेक्टली तो बीजेपी में ही जाएगा जीतने के बाद. इस बार एक और भी इंटरेस्टिंग चीज हुई है गोवा में. बीजेपी को ये पता है कि वो सालसेट एरिया के अंदर एक भी सीट नहीं जीत सकते, कैथोलिक एरियाज के अंदर एक भी सीट नहीं जीत सकते. तो बीजेपी ने क्या किया है कि अपने कैंडिडेट्स को चुनाव के 2 महीने पहले कांग्रेस ज्वाइन करवा दिया और अपने लोगों को कांग्रेस की टिकट दिलवा दी है. तो वो कांग्रेस के नाम पे जीतेंगे वहां पे अगर मान लो चुनाव, तो वो चुनाव जीतने के बाद तुरंत बीजेपी. बट उन्होंने भी एंटी, तो एक तरह से चुनाव की कैंडिडेट उन्होंने उस एरिया के लिए आउटसोर्स कर दिया है कांग्रेस को. और कांग्रेस ने वो तो ये चुनाव केवल 2 उसके बीच में है. एक तरफ एक ऑनेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको ईमानदार सरकार चाहिए आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए. अगर आपको बेईमान सरकार चाहिए, करप्ट सरकार चाहिए, स्कैम्स की सरकार चाहिए, तो बीजेपी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोट दीजिए. Okay, it's interesting that you say that there is no fragmented opposition. How do you then respond to the fact that if there was a united opposition, if there was no infighting, it would have perhaps been a serious challenge to the BJP, given the fact that it's going to be extremely hard for any single party to cross the halfway mark. Do you think an alliance would have worked better? This election is not about BJP or this election is about the future of Goa. गोवा के लोगों के गोवा के लोगों के सामने अभी तक 2 ही ऑप्शंस थे, बीजेपी, कांग्रेस. तो एक बार बीजेपी को चूज करते थे, एक बार कांग्रेस को चूज करते थे.
अगर करप्शन वॉज नॉट एन इशू कि दोनों ही करप्ट थे। ओके, पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है जो बार बार, कभी गोवा के लोगों ने सुना पॉलिटिक्स के अंदर सुना कि ईमानदार पॉलिटिक्स, ईमानदार कैंडिडेट, ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार पार्टी कभी सुना था? जिंदगी में नहीं सुना कभी। एक मिनट पहली बार सुनने को मिल रहा है कि एक पार्टी आके कह रही है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, हमने दिल्ली में ईमानदारी से काम किया। ईमानदार ऑप्शन है गोवा के लोगों के पास। सो दिस इलेक्शन इज नॉट अबाउट बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी, दिस इलेक्शन इज अबाउट क्या हमें ईमानदार गवर्नमेंट चाहिए कि बेईमान सरकार चाहिए। Okay, it's fair that you say that, but then I'll ask you a counter question to that. This is not the first election that the Aam Aadmi Party is fighting in Goa. What is different from 2017? 2017 was looked at as a debacle. A majority of your candidates lost their deposit. What's changed in the last 5 years? हर इलेक्शन अलग होता है। 2017 का इलेक्शन जो है पहला इलेक्शन था, हमारे पास हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, कैंडिडेट्स नहीं थे, बहुत सारी चीजें हैं। इस बार पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से गोवा के लोगों के बीच में गई है। स्पेशली कोरोना के दौरान, जब कोरोना हुआ था, कोरोना के दौरान जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने देश भर से डोनेशंस इकट्ठे करके गोवा के एक एक घर के अंदर राशन पहुंचाया था, उस टाइम कहां थी बीजेपी? उस टाइम कहां थी गवर्नमेंट? उस टाइम कहां थी बीजेपी गवर्नमेंट? उस टाइम कहां थी कांग्रेस? सब लोग अपने घर में बैठे हुए थे। अभी चुनाव के पहले सब लोग वोट मांगने आ रहे हैं। जब हम राशन पहुंचा रहे थे, हमने किसी को नहीं कहा हमें वोट देना। हम क्यों? आम आदमी पार्टी इंसान की इज्जत करती है, आम आदमी पार्टी के अंदर इंसानियत है, ईमानदारी है। हम गोवा के लोगों की जिंदगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, गोवा के लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज भी मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं। आम आदमी पार्टी ने इतनी सारी गारंटी दी है गोवा के लोगों को। हम कहते हैं हम आएंगे तो स्कूल ठीक करेंगे, हॉस्पिटल ठीक करेंगे, इलाज मुफ्त करेंगे, बिजली 24 घंटे करेंगे, बिजली ठीक करेंगे, पानी ठीक करेंगे, महिलाओं को हजार रुपए, इतने सारे। कहना है आस्क यू कि कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ने क्या बोला? मेरा सवाल ये था कि आप ये कैसे करेंगे? बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द आम आदमी पार्टी मैनिफेस्टो। लेट मी कम टू एन इंपॉर्टेंट, you have a very ambitious plan. just one second, I'll come to that. क्या कांग्रेस ने गोवा के लोगों को आके बताया कि कांग्रेस अगर जीत गई तो क्या करेगी? कुछ नहीं बताया, वो बात ही नहीं कर रहे। क्या बीजेपी ने आपको आके बताया कि अगर वो जीत गए, आप उनको वोट दोगे तो वो क्या करेंगे? वो बात ही नहीं कर रहे गोवा की, वो बात ही नहीं कर रहे गोवा के लोगों की। सुबह सुबह आप गोवा का अखबार उठा के पढ़ लीजिए, उसमें लिखा होता है ये कैंडिडेट इस पार्टी से उसमें चला गया, ये कैंडिडेट इस पार्टी से इसमें चला गया, ये इसमें से। ये चल क्या रहा है गोवा में और क्यों चला गया? लोगों से बात करो तो कहते हैं इसको 10 करोड़ रुपए ऑफर किए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई थी, सेकंड नहीं आई थी, इसलिए उधर चला गया। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? ऐसे गोवा का डेवलपमेंट होगा? आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो आपके बच्चों की बात करती है, आपके बच्चों के रोजगार की बात करती है, एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, माइनिंग की बात करती है, स्कूल की बात करती है, हॉस्पिटल की बात करती है, बिजली की बात करती है, रोड्स की बात करती है, पानी की बात करती है, महिलाओं की सेफ्टी की बात करती है। I'll come to each point of the manifesto and I will ask you how you're planning to implement, because you have a very ambitious manifesto. But let me begin because you talked about candidates idhar se udhar ja rahe hain. It's a very ayaram gayaram situation in Delhi. I was in Goa and I was talking to a colleague and saying that if you're sick for 5 days and you haven't read the paper and you don't know what's happening in Goa, you're basically out of it. No. Okay. If you take a flight from Delhi to Goa, and your phone by is the off, time you land up in Goa, 2-3 candidate idhar se udhar ja No, but chuke it's hote. interesting because this time around, after the Congress party, the Aam Aadmi Party has made candidates sign an anti-defection pledge. This is the first time that it's ever happening. Have you done that? Have you picked up the cue from the Congress, or are you insecure about your candidates defecting as well? Because your candidates have also signed a pledge. It's not the question about that. आज गोवा के लोगों को उम्मीद है, बहुत सारी उम्मीदें इसलिए है क्योंकि आज तक कोई ऐसी पार्टी दिखी नहीं जो ईमानदारी की बात कर रही है, कोई विजन की बात कर रही है। आज हम आम आदमी पार्टी एक नया होप उनके लिए उभर के आ रहे हैं। Okay. So it's about giving them that hope that yes, we will not defect. As I said, Goa has become encyclopedia of defections. Goa politicians can hold tuition classes, coaching classes for defections, and it's very unfortunate that somebody like you, when you say that, yeah, Goa में आप ऐसे करोगे, आप flight. See, it's a very serious issue because it shows the transactional nature of politics in Goa today, which is extremely worrying, and it's not a new phenomena for Goa. तो एफिडेविट जो है वो गोवा के लोगों को एक कॉन्फिडेंस देता है। सबके घरों में बांटेंगे वो एफिडेविट। Okay. एक के घर में जाएगी इसकी फोटोकॉपी। उनको कॉन्फिडेंस देता है कि इसने ये कसम खाई है, नंबर 1। नंबर 2, उनको लीगल राइट देता है।
अगर कल को ये चेंज करता है पार्टी तो एनी गोवन पर्सन, गोवा का कोई भी वोटर उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड फॉर साइनिंग अ फॉल्स एफिडेविट. Okay. You're saying that you've made your candidate sign anti-defection. The Congress done the same thing. Will you accept candidates defecting from other parties? एक्सेप्ट कैंडिडेट मतलब चुनाव के बाद? चुनाव के बाद दूसरे पार्टी से अगर आपके साथ लोग जुड़ना चाहें तो? अगर अच्छे कैंडिडेट्स हैं, अच्छे लोग हैं, उनका स्वागत होगा. Okay. So it's not a two-way street. नहीं. Okay. You know, the whole promise of 50,000 jobs in 5 years. Clearly, mining is not the only route that you're going to take. मैं बताता हूँ. The allowances that you have announced in terms of SOPs that you've announced, this 1,000 rupee allowance for women, the 3,000 rupee joblessness allowance, and this is something that you've done as a party, not just here in Goa, but you've promised similar things in Punjab, for instance, as well. The question again is, you know, what are the resources available to you that aren't available to the others? पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? गोवा के ऊपर अभी 23,000 करोड़ का डेट है. ये डेट कैसे चढ़ गया? ये पैसा कहाँ गया? कभी सोचा आपने? गोवा में पिछले 20 साल से एक भी नया स्कूल नहीं बना. गोवा में पिछले 20 साल से एक भी नया कॉलेज नहीं बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बना, एक भी नई डिस्पेंसरी नहीं बनी, एक भी नई सड़क नहीं बनी. तो फिर ये 23,000 करोड़ रुपए का डेट चढ़ा कैसे गोवा के? भाई गया कहां? ये सारा इनके स्विस बैंकों में गया, ये सारा इनकी जेब में गया, इन नेताओं की जेब में गया. आज सुबह मेरे को एक गोवा का बंदा मिला, वो मुझे बोला कि सर ये जो टॉप के 3-4 नेता है ना, 5-6 नेता जो गोवा के, उनसे एक से बस एक ही क्वेश्चन पूछो कि क्या आप अपनी टोटल वेल्थ को कैलकुलेट करके बता सकते हो कितनी है? बोला इनको हिसाब ही नहीं है अब इनके पास कितनी वेल्थ हो गई है, कितनी प्रॉपर्टी न्यूजीलैंड में है, कितनी प्रॉपर्टी यूएसए में है, कितनी प्रॉपर्टी लंदन में है. ये सारा 23,000 करोड़ रुपया उधर गया है. ईमानदार सरकार आएगी, पैसे की कमी नहीं है. दिल्ली में करके दिखाया है. 1 मिनट, यहां पे भी करके दिखाएंगे. जो स्विस बैंक में जा रहा है इनका पैसा, इनके नेताओं की जेब में जा रहा है, अब ये नेताओं की जेब में नहीं जाएगा, अब ये गोवा की महिलाओं के जेब में जाएगा. 1,000 रुपए महीना गोवा की महिलाओं की जेब में जाया करेगा. माय नेम इज तन्वी पालकर. मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन पास किया है और मुझे गोवा में ही जॉब चाहिए जो मुझे नहीं मिली है. तो अगर आपकी सरकार आम आदमी पार्टी आएगी तो क्या मुझे जॉब मिलेगा? अभी अमित जी ने कई सारी आपको बातें बताई, मैं इसको थोड़ा समअप कर देता हूं. आज गोवा में सरकार में अगर आपको नौकरी लेनी है, गवर्नमेंट जॉब, क्या बिना सिफारिश या बिना रिश्वत के मिल सकता है? नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता. अभी इन्होंने कुछ दिन पहले जॉब स्कैम एक्सपोज किया था कि केवल सीएम और हेल्थ मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी के अंदर सारे जॉब्स उधर ही जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं? क्या बाकी कंस्टिट्यूएंसीज में और बच्चे नहीं रहते? इंटेलिजेंट रहते हैं, लेकिन बदमाशी कर रहे हैं वो लोग. इसको बंद करेंगे. पहले दिल्ली में भी ऐसे होता था, दिल्ली में बंद किया. ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेके आएंगे, कोई रिश्वतखोरी नहीं होगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, वेबसाइट के ऊपर सब कुछ डाल देंगे. ट्रांसपेरेंट तरीके से सब बच्चों को जॉब मिलेंगे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं. नंबर 1. बट गवर्नमेंट जॉब्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल द किड्स. सब बच्चों को जॉब चाहिए तो प्राइवेट में भी जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे. आज गोवा के अंदर अगर नई इंडस्ट्री लगानी है, आप लगा नहीं सकते. चक्कर काटते रहो, पैसे देते रहो. मैं कई इंडस्ट्रियलिस्ट से मिला हूं इन दिनों के अंदर, लगने ही नहीं देते इंडस्ट्री. ये पॉलिटिशियन पैसे खा जाते हैं, पैसे लेके भी नहीं लगाते. नया ट्रेड अगर आपको शुरू करना है, नया व्यापार शुरू करना है, नई दुकान खोलनी है, ये इट इज सो डिफिकल्ट टू डू इट. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. बड़े स्केल के ऊपर इकोनॉमिकली सस्टेनेबल इंडस्ट्री को इनवाइट किया जाएगा. सबको इंडस्ट्री लगाने के लिए इजी प्रोसेस को किया जाएगा, ट्रेड को शुरू किया जाएगा ताकि आपको जॉब्स मिल सके. तीसरी चीज, गोवा में जितने जैसे ये गवर्नमेंट टेंडर्स जितने निकलते हैं, ये सारे गवर्नमेंट टेंडर्स बाहर वालों को मिल जाते हैं. बाहर वाले आते हैं, यहां पे काम करते हैं, बाहर से सारी मैन पावर लेके आते हैं. गोवा के बच्चों को कुछ नहीं मिलता, सारी मैन पावर. हम ये कानून लेके आएंगे कि 80% जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो विल बी रिजर्व फॉर गोवन यूथ. तो आपको उसके बाद जॉब मिलना चालू होगा. You know, before we end this town hall, have you picked up any Konkani? No, not yet. Not yet? 2 लाइन आती हैं
कशे आसात तुम्ही? देव बरे करूं. All right. I think on that note, thank you both very much for being with us. Thank you all. You've been a wonderful audience. It's Thank all you. the time we have. We will, of course, continue our election coverage from Goa. Stay tuned to NDTV. Thank you.